Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. This is class 5th of subject Physics, chapter number 2 and lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे इन दिस lecture we are going to start our second chapter, which is simple machines. In this chapter we will learn about the simple machines, what are simple machines, what are the type of the simple machines and what are the uses of the simple machines. आज हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है, सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स क्या होती है, इनका यूज़ क्या होता है और कितने अलग अलग टाइप्स की होती है जो हम डेली लाइफ में अपने कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट we will study the introduction. Long ago, human beings depended on the muscular energy for doing work. However, we have only limited amount of energy and cannot do simple machines. A pair of scissors, a knife, a spoon, a screwdriver, a wheelbarrow, etc. are some example of these simple machines. In this introduction, it is saying that before, in the ancient times, the human being use only their body parts to do the work and use their muscular energy, means using the body, using the muscles of the body to do the work. But after some time you can see the human can get tired of, human get tired of and can't do too much work continuously, and it's take very much or too much efforts to do the work. By the time, as the time passes, the human learn how to use the simple devices to make our work easier, to save the time and to save the hard work or the effort. And this simple device or design are known as the simple machines. Like you are using a knife at your home, it is also a simple machine. A scissor, it is also a simple machine. Whatever the device is used to do the work, to make your work easier, that is known as the simple machines. Even a spoon that you use to eat the food, that is also a kind of simple machines. इंट्रोडक्शन में आपको कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग, जो इंसान थे, बहुत समय पहले हम क्या करते थे, अपने बॉडी को यूज़ करते थे काम करने के लिए. बॉडी इन सेंस अपने मसल्स, मस्कुलर एनर्जी का मतलब हम अपने शरीर के पार्ट से, जैसे हाथ हो गए, मसल्स का यूज़ करते थे काम करने के लिए. और काम करने में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था. और फिर भी जो रिज़ल्ट जो निकलता था काम का, वो क्या होता था, बहुत कम. मतलब हार्ड वर्क तो ज़्यादा और काम क्या होता था, कम. सो ह्यूमंस ने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे टूल और ऐसे डिवाइस बनाए जो क्या करें, उनके काम को आसान कर दे, उनके एफर्ट्स को कम कर दे, उनके हार्ड वर्क को कम कर दे. मतलब हार्ड वर्क तो करे लेकिन कम हार्ड वर्क करना पड़े, और जितना हार्ड वर्क, जितना कम हार्ड वर्क वो कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको क्या मिले, उस काम का रिजल्ट मिले और काम भी क्या हो जाए, जल्दी जल्दी. तो ऐसे सिंपल डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन्स. जैसे आप जो घर में खाना खाने के लिए स्पून यूज़ कर रहे हो, वो भी एक टाइप की क्या, सिंपल मशीन्स है. ओके. एक सीज़र मतलब कैंची या चाकू जो आप अपने घर पे यूज़ कर रहे हो. एक पहिया, एक व्हील, पहिया, वो भी क्या, एक सिंपल मशीन का क्या है, टाइप है. ओके. टॉपिक इज सिंपल मशीन्स. अ सिंपल मशीन कैन डू द फॉलोइंग.
first it can change the direction of effort. Second, it can multiply effort, that means with a small effort we can move a heavy load. And third, it can increase its speed. Okay, so by using the simple machine you can do the following things, like you can change the direction of effort. Like that means if you are doing a work in another direction but your result is in another direction, जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि सिंपल मशीन्स को यूज़ करके जब आप पुली से जो पुली होती है जिससे आप जैसे कुएं में से आप पानी निकालते हो तो आप वो पुली यूज़ करते हो, जिस एक पहिया होता है जो एक रॉड से क्या होता है फिक्स्ड होता है सेंटर में से, क्लियर। और उसके ऊपर क्या लगी होती है रस्सी, उसके एक कुएं वाली साइड में क्या लगा होता है एक बाल्टी बकेट लगी हुई होती है। आप क्या करते हो उस रस्सी को नीचे की तरफ क्या करते हो खींचते हो, तब जाके वो जो बाल्टी होती है पानी से भर के ऊपर आती है। तो आप एफर्ट तो कहाँ लगा रहे हो नीचे की तरफ, ओके, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट की आपकी पानी से भरी हुई बाल्टी वो क्या आ रहा है ऊपर की तरफ। तो आपने देखा डायरेक्शन चेंज हुई, ओके। सेकेंड, इट कैन मल्टीप्लाई एफर्ट, दैट मीन्स by using the pulley, by using the wheel, by using the simple machine you can even move a heavy load with some small effort, okay। कहने का मतलब आपका जो भी एफर्ट होता है, आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो उसकी सिंपल मशीन का यूज़ करने से वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, मतलब डबल या ट्रिपल हो जाती है। जैसे आपने एक पुली यूज़ की, पुली मीन्स जैसे जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाल्टी पानी निकालने का कुएं में से, वो जो मशीन यूज़ कर रहे हो आप उसको हम क्या बोलते हैं पुली, ओके। ये वाली पुली यू कैन सी इन द सेकेंड, द ऑरेंज व्हील, द ग्रीन लोड, दिस इज़ द पुली, ओके। तो आपने क्या किया, सिंपल से आपने एक रस्सी खींची और बाल्टी के आगे ऊपर आ गई, मतलब आपने इतनी भरी हुई बाल्टी को भी एक सिंपल रस्सी से क्या कर दिया, कम थोड़ी सी हार्डवर्क किया, थोड़ा सा मेहनत की और इतनी भरी हुई हैवी बाल्टी आपकी ऊपर आ गई, ओके। और जैसे आपको कोई बड़ा सा हैवी लोड लेके जाना तो आप क्या करते हो ऑटो मंगवाते हो, थोड़ी सी मेहनत की और आपका काम क्या हो गया डबल हो गया, क्लियर। थर्ड, इट कैन इंक्रीज स्पीड, एज यू नो वेरी वेल दैट बाय यूजिंग द व्हीकल्स दैट हैविंग द व्हील्स इट इंक्रीजेज आवर स्पीड। जैसे आप घोड़े गाड़ी का जो मीन्स गाड़ियों का यूज़ करते हो उसमें क्या लगे होते हैं पहिए, व्हील्स। तो व्हील्स क्या एक सिंपल मशीन है, तो इससे क्या हो रहा है आपका काम करने का जो स्पीड हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे यू आर ड्रैगिंग अ हैवी लोड अलॉन्ग द ग्राउंड, ओके, एंड इट्स टेक 1 hour or half an hour, but instead of that dragging, if you use the vehicles or wheels to move the heavy load, it just take a couple of minutes। जैसे आप एक बहुत बड़ा सा भारी सा सामान ज़मीन से खींचते खींचते या खुद उठा के लेके जा रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे मान लो एक हैवी लोड आप लेके जा रहे हो और आधा घंटा लग रहा है, क्लियर। वही आप अगर कोई व्हीकल यूज़ करते हो या पहिए यूज़ करते हो, पहियों से बनी हुई कोई भी छोटी सी डिवाइस जैसे लॉरी हो गया या गाड़ी, तो आप देखेंगे आप फट से वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, तो आपकी स्पीड क्या हो गई इंक्रीज, क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन। फर्स्ट इज लीवर, सेकेंड इज पुली, थर्ड इज व्हील एंड एक्सेल, फोर्थ इंक्लाइन प्लेन, फिफ्थ इज स्क्रू एंड सिक्स्थ इज वेज। ओके, फर्स्ट इज लीवर। You can see the picture of lever here, which is in green load, fulcrum is in between and the force is between। ये लीवर हो गया, ओके। सेकंड आप देखेंगे पुली आप देखेंगे बीच में एक पहिया है और लोड मतलब आपका जो भी सामान और वेट है वो, फोर्स मतलब जो आप एफर्ट लगा रहे हो। व्हील एंड एक्सेल, फोर्थ इज इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन मतलब ढलान, स्लोप, ओके। ये ऐसा जो आप देखेंगे कॉमनली आप घर पे यूज़ करते हो, जैसे आपकी जो बाइक्स या गाड़ी होती है वो आप अपने अंदर
घर के अंदर ले जाने के लिए एक स्लोप यूज़ करते हो ताकि वो जो गाड़ी है वो इजीली क्या चढ़ जाए, ऊपर चढ़ जाए। यार आप कभी देखेंगे ट्रक से कोई हैवी लोड सामान निकाल रहे तब भी एक सिंपल सा एक लकड़े का बना हुआ पट्टा यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो भी क्या हो जाएगा हमारा इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट इज वेज। वेज मतलब छोटा सा इंक्लाइन, दो इंक्लाइन प्लेन को जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है हमारा वेज बनता है। क्लियर। आप देखेंगे डोर स्टॉपर, जो आपके दरवाजे में जो रबड़ का बना हुआ स्टॉपर है वो भी एक किसका एग्जाम्पल है, वेज का। नाइफ, चाकू, चाकू भी एक वेज का एग्जाम्पल है। एंड फिफ्थ इज स्क्रू, लास्ट इज स्क्रू। स्क्रू जो आप घर में कुछ भी फिट करने के लिए जो आप लगा रहे हो दैट इज स्क्रू। ओके, so these are the type of the simple machines. Let's see the first type. First is lever. A lever is a setup which involve an applied force or effort, a fulcrum or pivot and a load. Pivoted at the fulcrum, the applied force or effort will generate a moment that make it easier to overcome the load. So lever is a kind of simple machine in which there are three part of load, a fulcrum, okay, and a effort. You can see in this picture a load, fulcrum and a force. Fulcrum is a fixed point around which the load has and around which we applied our effort and the load, we got the result as the overcome लोड, मतलब जो वेट आपको उठाना है, जो काम आपको करवाना है वो। फुलक्रम, फुलक्रम मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है, FULCRUM, फुलक्रम। फुलक्रम मतलब फिक्स्ड पॉइंट जिसके आजू बाजू क्या होता है हम एफर्ट लगाते हैं और वहीं से क्या होता है लोड या जो भी हमारा काम होता है वेट हम उठाते हैं। और फोर्स मतलब एफर्ट जो भी आप काम कर रहे हो। क्लियर। जैसे ये सेटअप आपको दिख रहा है, जैसे ही आप फोर्स आप अपने हाथों से एफर्ट लगाएंगे, काम करेंगे तो ये लोड क्या होगा ऊपर उठेगा और ये फिक्स पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। सो दिस वाज आवर लीवर। समझ में आया। जब आप फोर्स लगाते हो लोड के ऑपोजिट साइड में तो जो वेट होता है वो आपका उठ जाता है। क्लियर। सो इस तरह से लीवर काम करता है। नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम. So in homework there is only one word meaning, that is wheelbarrow, एक पहिया ठेला. Okay, this is the image of the wheelbarrow. The image is just to clarify you. You don't need to draw this. You just write the wheelbarrow, एक पहिया ठेला. Clear? आपको जो इमेज है वो बनानी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाली है. wheelbarrow का मतलब क्या होता है, एक पहिया ठेला जिसमें सिर्फ एक पहिया होता है. Clear? So here we complete our this lecture number 1 of the chapter number 2. Till then, thank you and stay safe and have a nice day.